हाँ, अभी मैं 5 मिनट बैक टू बैक डिफरेंट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप सभी को। आप सभी ध्यान देंगे और बोलेंगे। देखिए क्वेश्चन उठता है सर, हाउ टू कनेक्ट सेंटेंसेस। Sir, how to connect sentences, how to make lengthy sentences, sir. After speaking, a single sentence, I get stuck and I start thinking what to say next, sir, how I can connect. So let me tell you, we connect sentence by using some fillers, some conjunctions, prepositions, and phrases. Dear students, some fillers, conjunctions, prepositions and phrases are used to speak a lengthy sentence. See, when you start communicating with anyone, so we have seen we use some fillers like so ये क्या है? Well, I mean, so these are the fillers. So these are the fillers that are used when we get stuck. Just use, we just start thinking and we use these words so that our listener can understand that we are speaking in a practical way. Instead of stopping, instead of getting a long pause, when we speak these kind of words, so they somehow maintain our speed and fluency, and also it connects our listener to us. So so they are called fillers. इन fillers को हम use करते हैं हमारे sentences को use करने के लिए. In terms of conjunction, if I talk about, so conjunctions, we have a lot of conjunctions. The first we have because, the second therefore, that's why, third otherwise, but, as, so as, not only but also, as long as soon as well. We have more than 30 to 35 conjunctions that are used to connect different sort of sentences. So एक दूसरा conjunction की मदद से sentence जोड़ते हैं, तीसरा preposition की मदद से जोड़ते हैं. preposition की मदद से sentence, जैसे आपने कहा from, by, instead of, मैंने कहा instead of going there you should come here. वहां जाने की बजाय आपको यहां आना चाहिए. Why are you wasting your time by sitting over here? यहां बैठकर आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो by sitting here, by is a preposition. ठीक है. So what I am telling कि preposition जो है इसकी मदद से भी आप sentences को लेंदी बनाते हैं. Some phrases, देखो phrases होते हैं वाक्यांश. जैसे आपने कहा कि एक phrase आपने यूज किया for a while. For a while थोड़ी देर के लिए. In a while थोड़ी देर में. देखो एक preposition है, ये while है. तो for a while थोड़ी देर के लिए. Can I sit over here for a while if you don't mind? You can see that I have used a phrase. Can I sit here for a while if you don't mind? So this is the phrase actually that we are using. In a while. In a while थोड़ी देर में. Yeah, my father, he will be here in a while. हाँ, मेरे पापा थोड़ी देर में वो यहाँ पर होंगे. He will be here in a while. So the second one that we have is in a while. In a while थोड़ी देर में. तो आपको क्या करना होता है? What you have to do is to connect and to learn all these things, because in the previous session I have taught you all these things. Nothing is left. What you need to do is to speak in your own way. और बोलना भी क्या है ये भी मैंने आपको बताया that we have given you certain questions to practice. You just have to take them out and start practicing with them. मैं अगर आपसे पूछूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हो? Why are you doing so? मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना पसंद है. I'm doing so because I like to do this. मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है. आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज माई इंग्लिश इज़ वीक. मैं कुछ नहीं बोल पाया उसके सामने क्योंकि मैं तैयार नहीं था कुछ भी बोलने के लिए. आई कुडंट स्पीक एनीथिंग बिफोर हिम बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी टू स्पीक. और जब मैंने बोलने की कोशिश करी तो मैं अटक गया. एंड व्हेन आई ट्राई टू स्पीक आई गॉट स्टक. इनिशियली आई थॉट आई शुड ट्राई माई बेटर, आई शुड गिव माई 100% एफर्ट्स, बट आई कुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट. सो आई कुड नॉट स्पीक एनीथिंग बिफोर हिम. सो दैट इज़ द वे टू स्पीक. आप एक नेचुरल फ्लो में बोलना स्टार्ट करें. आप ये ना केयर करें. यू डोंट हैव टू केयर कि नहीं सर मैं अटका तो क्या होगा. देखो कुछ चीज़ें हैं ना आपको स्वतः आएंगी. Most of the
नॉट कुछ चीज़ें यार, आई वुड से एवरीथिंग यू विल लर्न इवेंचुअली। बिकॉज होता क्या है कि आप जब प्रैक्टिस करते हो, बैक टू बैक चीज़ों को बोलते रहते हो और अपना 100% देने की कोशिश करते हो, सो स्पॉन्टेनियसली यू लर्न एवरीथिंग एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लर्निंग। आप किसी भी सेंटेंस को आप देख लीजिए, किसी से हम इंग्लिश में बात कर रहे हो, आप ऐसा करिए कि आप किसी से इंग्लिश में बात करने वाले हैं तो आप क्या क्या चीज़ें पूछेंगे वो पहले ही दिमाग के अंदर प्रिपेयर कर लो। द फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क दैट हाउ कुड यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। द सेकंड वन आई वुड लाइक टू आस्क हिम दैट द जर्नी दैट ही हैज़ गॉन थ्रू टू लर्न इंग्लिश। थर्ड आई विल बी आस्किंग लाइक द काइंड ऑफ डिफिकल्टीज that he and she has faced while learning English. The fourth question I would like to ask, why one should focus on his grammatical mistake. Do mistake really matters while speaking English? क्या बोलते वक्त गलतियां सचमुच मायने रखती है, यू नो। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। यस, एक्सेलेंट जॉब। चलो एवरीवन, सो आइए हम लोग नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आई एम गोइंग टू आस्क यू द रैंडम सेंटेंसेस। इट वुड बी बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रपोजिशन, कंजंक्शंस, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब, you know, indefinite pronoun. I'm asking you anything, it's up to me. You guys have to translate all these things into English confidently and practice. Okay, so let's get started. मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। There is nothing that you can't do. आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। You can do everything if you want. There is nothing that you can't do. There is nothing. There is nothing मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। That you can't. आप सब कुछ कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। You can do everything if you want. मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाए और इंग्लिश सीखें। मैं नहीं चाहता, I don't want you to go there. मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाएं। आई डोंट वॉन्ट यू टू गो देयर एंड इंग्लिश सीखें, लर्न इंग्लिश। मैं चाहता हूं आप यहीं रहे और अपने आप को इंप्रूव करें। आई वॉन्ट यू टू स्टे हियर एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश। मैं यहां रहकर अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं? हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश यहां रहकर? बाय स्टेइंग हियर। आपको नहीं लगता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज के समय में बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है? आपको नहीं लगता? डोंट यू थिंक द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म in present days, in present time, is very convenient. Convenient का मतलब होता है कैसा है? सुविधाजनक है। इसी से कन्वीनियंट से बना कन्वीनियंस, इसी से बना कन्वीनियंटली, है ना। मुझे लगता है आज के समय में सारी चीज़ें बहुत आसान हैं जो हम घर बैठे सीख सकते हैं। I think in present time, I think आज के समय में, या नाउ, देखो प्रेजेंट टाइम के बदले आप ये भी फ्रेज भी यूज कर सकते हो, नाउ डेज। सारी चीजें बहुत आसान है। एवरीथिंग इज वेरी इजी। इजीली नहीं आएगा, इजी आएगा, एडजेक्टिव लगाना। एवरीथिंग इज वेरी इजी। ओके, आई थिंक नाउ डेज एवरीथिंग इज वेरी इजी। आज के समय में सब कुछ आसान है जो हम घर बैठकर सीख सकते हैं। दैट वी कैन लर्न बाय सिटिंग एट होम। हमें कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। वी विल नॉट हैव टू गो एनीवेयर। वी विल नॉट हैव टू गो एनीवेयर। हमें कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। वी विल नॉट हैव टू गो एनीवेयर। ओके, दिस इज द थिंग। क्या आपको लगता है ये करना सही है?
डू यू थिंक इट इज गुड टू डू? डू यू थिंक इट्स गुड टू डू? गुड टू डू मतलब क्या ये सही करना सही है? मुझे लगता है सब कुछ करना सही है. आई थिंक इट इज गुड टू डू एवरीथिंग. इट इज गुड, इट इज राइट टू डू. सब कुछ करना सही है तो इट इज राइट टू डू एवरीथिंग. ठीक है, मुझे लगता है सब कुछ करना सही है. आई थिंक इट इज राइट टू डू एवरीथिंग. क्या आपने टीवी का रिमोट देखा? डिड यू फाइंड, डिड यू सी टीवीज रिमोट एनीवेयर? नहीं, सुबह से तो मैंने कोई रिमोट नहीं देखा. नो, आई हैवंट सीन, नो आई हैवंट सीन एनी रिमोट सुबह से, सिंस मॉर्निंग. मैंने तो सुबह से टीवी चालू नहीं किया. आई हैवंट स्विच ऑन, आई हैवंट स्टार्टेड, आई हैवंट ओपन एनी टीवी सिंस मॉर्निंग. मुझे नहीं पता रिमोट का है. आई डोंट नो वेयर द रिमोट इज. आपके पापा सुबह न्यूज़ देख रहे थे मॉर्निंग में, मुझे याद है. उनको पता होगा टीवी का रिमोट का है. योर फादर, ही वॉज वॉचिंग न्यूज़ इन द मॉर्निंग, ही मस्ट नो वेयर द रिमोट इज. जाओ और पूछो उनसे. गो एंड आस्क हिम वेयर इज द रिमोट. आई थिंक वो आपको सजेस्ट कर, आई थिंक वो आपको बता सकते हैं रिमोट का है. आई थिंक ही कैन टेल यू वेयर रिमोट इज. यू नो, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू कम हियर? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू कम हियर? क्या उसके यहां आने की संभावना है? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, क्या कोई संभावना है? पॉसिबिलिटी. इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू कम हियर ऑफ हिम? उसके आने की कोई संभावना नहीं है. देयर इज नो पॉसिबिलिटी, देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू कम हियर ऑफ हिम. मेरी वहां जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. आई हैव, देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू गो देयर ऑफ मी. यदि आप वहां जाना चाहते तो आप जा सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं. इफ यू वॉन्ट टू गो देयर, यू कैन गो देयर. आई विल नॉट स्टॉप यू. आई विल नॉट से यू नो. यू नो, आप जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं. विनीता देवी, आपको नहीं पूरे हिंदुस्तान को हेल्प मिलती है व्हेन वी प्रैक्टिस, यू नो, बिकॉज प्रैक्टिस समहाउ गाइड्स अस दैट हाउ वी कैन स्पीक बैक टू बैक विदाउट थिंकिंग, विदाउट मेकिंग एनी एरर. ओके, चलो एक नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस में मैं ना कनेक्शंस सिखाता हूं आपको. हाउ टू कनेक्ट सेंटेंसेस. न्यू पेज पे देख लेते हैं हम.